Hello kids, welcome back. Welcome back to your math classes. So kids, we have started our chapter money, and in that chapter we have done lots of sums. We have done conversion of money, we have done writing the money in rupee in terms of rupees and paise in words. है ना? We have done all these things. Now today we will move toward our exercise 7.5. We have already done some of the question based on that exercise, but today we will complete some more of that. ठीक है? Some problem solve that has been left that we will complete today. Okay, so kids, we have started in this exercise. We have to do multiplication. We have to do multiplication of money. In this exercise we have to do multiplication of money. Okay, so multiplication of money. Okay, now tell me kids, if the cost of one chalk or if the cost of one unit is given to you and you have been asked to find out the cost of multi or many, what you will do? अगर एक का कॉस्ट दिया है and you have been asked to find the cost of many, आप क्या करोगे? We will multiply. So we are going to do word problems. So just by reading the word problem, how we will get to know that what we have to do in that question. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? Now see, if one unit or one का cost is given, किसी एक यूनिट एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट इज गिवन टू यू एंड मल्टी का कॉस्ट दे आर आस्किंग. वन का कॉस्ट इज गिवन, वन का कॉस्ट इज गिवन एंड मल्टी का कॉस्ट दे आर आस्किंग. व्हाट यू विल डू देयर? वी विल मल्टीप्लाई. हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई. ओके. Okay kids, tell me, if the cost of one chalk, if the cost of one chalk is 4 rupees, okay, okay, so if the cost of one chalk is 4 rupees. Okay, so the cost of one chalk is given. Cost of one chalk is given 4 rupees. Find the cost of 8 such chalks. Now see this question. Question says if the cost of one chalk, if the cost of one chalk is 4 rupees, if the cost of one chalk is 4 rupees, find the cost of 8 such chalks. Find the cost of 8 such chalk. वन का दिया है. सी, अब आपका क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? इस तरह से. वन का दिया है, वन चॉक की प्राइस दिया है एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 8 चॉक्स. 8 चॉक का कॉस्ट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट. नाउ सो कॉस्ट ऑफ वन चॉक इक्वल्स टू, वन चॉक का कॉस्ट कितना है? 4 rupees. Cost of one chalk is 4 rupees and you have to find the cost of 8 such chalk. So cost of 8 such chalks equals to
वन का कॉस्ट इज गिवन, ठीक है, वन का कॉस्ट इज गिवन एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 chalk. Okay, see, here I am having 8 chalks. 8 chalks are there, है ना, देखो मैम के हाथ पे 8 chalks है. So the cost of one chalk is 4 rupees. So we have to find the cost of 8 chalks. How we will do that? One chalk का cost is 4 rupees. So 4, 8, 12, 16, next 20, 24, 28 and 32. What we have done? We have multiplied 4 with 8. One cost का price is 8 rupees. We have to find the cost of 8 such chalks. Now, so 8 fours are, we will get 32 rupees. So, we have to pay 32 rupees for 8 chalks. 8 chalk के लिए हमें कितना देना होगा? 32 rupees देना होगा. Okay. Now, next thing that we have to do is, see, if the cost of one chalk is 3 rupees. Now let us assume if the cost of one chalk is 3 rupees. Cost of one chalk is 3 rupees. And we have been asked to find out the cost of 3 such chalks. ठीक है? Cost of one chalk is 3 rupees. And we have been asked to find out the cost of 3 such chalks. तो 1 का प्राइस तो 3 है और हमें बोला गया 3 chalks का प्राइस फाइंड करने को. हाउ वी विल डू दैट? 3, 6, 9. 3 रुपीज का ये, 3 रुपीज का ये, 3 रुपीज का ये, तीनों को ऐड करो. हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 9. अच्छा, नाउ यू विल से कि मैम एट वन प्लेस यू आर सेइंग दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई, एट द अदर प्लेस यू आर सेइंग दैट वी हैव टू ऐड. बेटा, वी हैव read now that multiplication is repetitive addition. जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो what we do, we actually उसका मल्टीप्लीकेशन करते. जब हम किसी नंबर को बार बार, जैसे 3, 3, 3, तो हमने क्या किया? 3 times 3 लिया, दैट मीन्स 9. ओके, ठीक है. हम जब भी शॉप जाते हैं, कुछ हम खरीदते हैं, ठीक है, सपोज एक डस्टर, तो उन सब की क्या होती है? एमआरपी होती है. तो हम जाते हैं शॉप पे, हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि भाई गिव मी 1 डस्टर, है ना, गिव मी 1 डस्टर. वो हमें डस्टर देता है. फिर हमें पता कैसे चलता है कि भाई कितना पैसा हमें पे करना है? हाउ वी गॉट टू नो कि भाई हमें शॉपकीपर को कितना पैसा पे करना है? हमें तो पता नहीं चलेगा. कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है एमआरपी से. एमआरपी. सो व्हाट इज एमआरपी? MRP is maximum retail price. See, हर चीज की, जो भी चीज आप शॉप से खरीदते हो उसकी कुछ ना कुछ MRP होती है. ठीक है, आपकी पेन, पेंसिल, बुक, परफ्यूम, बैग, सारी चीजों की कुछ ना कुछ MRP होती है. सी, यहाँ पे भी आपको MRP डस्टर पे भी दिखेगी. सी हियर, है ना. MRP is 50 rupees. 50 rupees per piece. Now again see, इधर भी क्या दिया है? 1 piece. 1 piece of duster का प्राइस इज गिवन. कितना दिया है? 1 piece of duster का प्राइस कितना दिया है बेटा? सी, 50 rupees. 50 rupees is given ना. 1 piece of duster का प्राइस इज गिवन 50 rupees. So what if they ask you to find out the cost of 8 such dusters? What we will do? So the cost of one duster is given, है ना. Cost of one duster is given. So cost of one duster equals to 50 rupees. Now, so the cost of
3 dusters equals to 1 duster का cost is given and they are asking you to find the cost of 3 such duster. तो क्या होगा, 1 duster का cost is 50 rupees. अच्छा चलो, suppose this is a duster, ये suppose कर लेते हैं एक duster है, ठीक है, ये एक duster है, this is a duster, है ना. So 1 duster का price is given 50 rupees, ठीक है. So 1 duster का price is given 50 rupees. तो इस डस्टर का प्राइस कितना है, 50 rupees. So let us make a 50 rupees note. This is 50 rupees note, ठीक है. Now 1 duster equals to 50 rupees. So 3 dusters का प्राइस क्या होगा, तो इसका भी प्राइस कितना होगा, 50 rupees. एंड इसका प्राइस कितना होगा, it will be also of 50 rupees. अब तीनों डस्टर कितने कितने के हुए, 50 रुपीज के तीनों डस्टर हो गए, है ना. देखो, कॉस्ट ऑफ 1 डस्टर इज गिवन, कॉस्ट ऑफ 1 डस्टर इज गिवन एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 सच डस्टर. तो ये हमारे 50 रुपीज के 3 नोट्स हो गए. तो टोटल कितना हुआ, नाउ टोटल कॉस्ट, what will be the total cost, 50. या तो हम तीनों को ऐड कर दें, अगर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज एंड प्लस 50 रुपीज. ओके, ठीक है. तो वी विल गेट 150. एक तरीका तो ये हो गया. अदर वे इज दैट वी मल्टीप्लाई और 50 rupees into 3. 53 is 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15. So we'll get rupees 150. We have got rupees 150. 1 duster का प्राइस was given to you and 3 duster का आपसे पूछ लिया. तो क्या किया हमने, 1 का दिया था. फिर अगेन देखो, वन थिंग दैट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि आपको 1 का कॉस्ट दिया होगा एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेनी. व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई. हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. ओके, okay now see kids. Okay, so one day I went to a bookstore. One day I went to a bookstore and there I buy, from there I purchase some 2 books. वहां से मैम ने कितनी बुक्स खरीदी, 2 बुक्स खरीदी, ठीक है. मैम शॉप पे गए और मैम वहां जाके मैम ने क्या खरीदा, मैम ने वहां से 2 बुक्स खरीदा, ठीक है. मैम ने कितनी बुक्स खरीदी, मैम ने 2 बुक्स खरीदी. नाउ मैम ने बताया आपको हर चीज की क्या होती है, हर चीज की एक एमआरपी होती है, सबकी एक एमआरपी होती है, ठीक है. अब देखो, अब मैम भी शॉप पे गए तो शॉपकीपर ने, मैम ने बोला कि मुझे 2 बुक्स दे दो. शॉपकीपर ने मैम को बुक दे दी. फिर मैम ने बोला कि हाउ मच, तो शॉपकीपर ने बोला कि आप एमआरपी देख लीजिए. तो चलो हम एमआरपी देख लेते हैं. कहाँ होगी एमआरपी, हर प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी होती. सी इन दिस बुक ऑल्सो, देखो बुक पे भी एमआरपी दी है क्या, चलो ढूंढते हैं. सी यहाँ पे देखो, एमआरपी इज गिवन, हाउ मच इज गिवन हियर, सी प्राइस रुपीज गिवन ना, हाउ मच प्राइस इज गिवन देयर, 500 rupees. How much, 500 rupees is given here. Okay, in this book also and this book also 500 rupees is given. So now kids, I have bought 2 books. मैम ने 2 books खरीदी. One की price is 500. So what will be the cost of both? मैम को कितना पैसा देना पड़ा होगा? Let us see.
वन बुक इक्वल्स टू 500 रुपीज। ये हमने देखा ना, हमने एमआरपी पे देखा ना, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज गिवन, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 500 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ टू बुक्स, टू बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? वन का दिया है, टू का पूछ रहा है, व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई ₹500 इंटू टू। लेट अस सी ₹500 इंटू टू हमें कितना होता है। तो दिस इज 500 रुपीज का नोट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ 500 रुपीज का नोट, है ना। ये हो गई वन बुक के लिए, और हमने तो टू बुक खरीदी थी, तो ये हो गई सेकेंड बुक के लिए। टू 500 रुपीज का नोट इज देयर, तो टोटल कितना देना पड़ा? बुक वन, बुक टू, टू बुक्स का टोटल 500। तो टोटल कितना देना पड़ा मैम को, शॉपकीपर को मैम ने कितना दिया? थिंक एंड टेल मी। मैम ने शॉपकीपर को दिया 1000। मैम ने शॉपकीपर को कितना दिया? ₹1000, है ना। सी 5 2s are 10 and 2 0 I have included, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, मैम अब फिर क्या हुआ, मैम को तो कुछ और बुक्स की जरूरत पड़ी, मैम को पढ़ना था, तो मैम को कुछ और बुक्स की जरूरत पड़ी। फिर मैम शॉपकीपर के पास गए, बुक स्टोर पे गए, एंड देयर शी आस्क्ड फॉर 5 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? मैम ने कितने बुक्स मांगे शॉपकीपर से? 5 बुक्स मैम ने मांगे। सी 1 नहीं है, सी 1 2 3 4, where is one more? Oh, here. See, 5 books. 1 2 3 4 5। मैम ने कितने बुक मांगे शॉपकीपर से? 5 बुक्स। 5 बुक्स मैम ने बोले शॉपकीपर को देने के लिए, ठीक है। देखो अलग डिफरेंट कलर्स की बुक मैम लेके आई। वाई? बिकॉज मैम को कलर्स बहुत पसंद थे, इसलिए। सी 5 बुक्स, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 बुक्स शॉपकीपर ने मैम को फ्री में तो दिया नहीं, तो शॉपकीपर ने कितना पैसा लिया मैम से? तो हमें कैसे पता चलेगा कि वन बुक की कॉस्ट कितनी है? कैसे पता चलेगा हमें? बाय लुकिंग एट इट्स एमआरपी, उसके एमआरपी को देखे। व्हाट इज एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। से अलाउड 33 बोलो, मैक्सिमम, सारे बच्चे बोलिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज दैट प्राइस जिसपे शॉपकीपर बुक्स को सेल करता है ना। अब शॉपकीपर बुक उस जितनी प्राइस एमआरपी पे है उससे ज्यादा शॉपकीपर नहीं ले सकता हमसे। फॉर एग्जाम्पल सी, अब इस डस्टर की प्राइस हमने कितनी देखी थी? इस डस्टर की प्राइस हमने देखी थी 50 रुपीज। नाउ शॉपकीपर 50 रुपीज से अधिक नहीं ले सकता हमसे। वाई? बिकॉज यहाँ पे एमआरपी लिखी हुई है। नाउ सी कि इन बुक्स की कितनी कॉस्ट थी। सी इन बुक्स की कितनी कॉस्ट है? टेल मी। प्राइस इज ₹500। सो वन बुक कॉस्ट ₹500, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 500। नाउ आई हैव गॉट हाउ मेनी बुक्स? 5 सच बुक्स। तो अब हमें 5 बुक्स की प्राइस निकालनी है। हमें कितने बुक्स की प्राइस निकालनी है? 5 बुक्स की। वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स into 5। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें तो 5, पहले तो हमारे पास 500 की 2 नोट्स थी क्योंकि हमें 2 बुक्स लेनी थी। अब हमें 5 बुक्स लेनी है, तो हम क्या करेंगे? 5 नोट्स हम ड्रॉ करेंगे।
सी ना 505 देखो अब क्या हुआ 500 की टू नोट्स मिलके कितनी नोट्स बनाती हैं अगर आपके पास 500 अच्छा चलो बताओ अगर आपके पास 5 रुपीज है और फिर एक और 5 रुपीज है टोटल कितना बना 10 रुपीज है ना नाउ अब 500 की टू नोट्स 500 रुपीज की टू नोट्स थी तो वो कितना बना 1000 नाउ फिर से अगेन वी आर हैविंग हियर 500 प्लस 500 इट विल मेक रुपीज 1000 और यहाँ पे हमारा एक 500 का नोट क्या हो गया अकेला रह गया तो टोटल अमाउंट कितना देना था हमें शॉपकीपर को मैम को टोटल कितना अमाउंट देना पड़ा शॉपकीपर को 2000 सॉरी 2500 है ना फिर से देखो मैम ने वन बुक की प्राइस आपको बताई 500 रुपीज और इस तरह से आपने खरीदी है 5 बुक्स वन बुक की प्राइस was given and in this way you have been asked to find out the cost of 5 such books 5 बुक्स की कॉस्ट पूछी गई क्या करेंगे हम 5 बुक्स की कॉस्ट जब पूछी गई तो व्हाट वी विल डू 500 into 5 ठीक है तो फिर क्या हुआ हमने शॉपकीपर को 1 2 3 4 5 नोट्स दिए 500 के तो कितने हो गए टोटल बेटा टोटल कितने हो गए 500 प्लस 500 1000 500 प्लस 500 1000 अगेन and then one more 500 so total amount is 2500 total amount is rupees 2500 ठीक है okay now let us do the our exercise question so अब I hope one and many का concept is clear to you all one and many आप सबको समझ में आ गया होगा how to find one if cost of one is given and many का आपसे पूछा तो so a tin of paint cost rupees 50 पैसे ठीक है a tin of paint cost rupees 50 पैसे find the cost of 10 such tins so our statement will be cost of one tin to one tin का cost is 15 rupees 50 पैसे now next is cost of 10 such tins what we will do one का is given and many का पूछा हम क्या करेंगे वन का गिवन है many का पूछा हम क्या करेंगे we will find the multiplication we will find the product ठीक है ओके सो 15.50 into 10 अब देखो इसको करने के टू वेज हैं हमारे पास ठीक है इस क्वेश्चन को करने के वी आर हैविंग टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वन इज तो हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करें 15.50 into 10 करके हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करें अदर वेज हम इसको शॉर्टकट से करें दिस इज व्हाट दिस इज तो लंबा मेथड ना दिस इज वेरी लॉन्ग मेथड टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में तो मैम ने हमें पढ़ाया था कि whenever we have to multiply any given number with 1 or any number with 10 100 or 1000 what we have to do we just have to increase one zero nothing else we just need to increase one zero and nothing else so 15.50
रुपीज। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा डिजिट इसी तरह लिख देंगे, देन वी विल इंक्रीज 1 0। हमने 1 0 इंक्रीज कर लिया, ठीक है। नाउ वेट, ठीक है। नाउ अब लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी एंड पैसे में, हम रुपीस एंड पैसे में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसे में वी पुट अ पॉइंट, हम पॉइंट लगाते हैं राइट साइड से 2 प्लेस पे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो अवर आंसर इज 155 रुपीज। अवर आंसर इज रुपीज 155, है ना। नाउ किड्स, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसे। सिंपल मल्टीप्लाई किया एंड फिर 2 पॉइंट, राइट से 2 पॉइंट पे हमने पॉइंट लगा दिया, 1 2 प्लेस पे हमने क्या किया, 2 प्लेस पे हमने पॉइंट लगा दिया, ओके। Now let us see the next question. Our next question says, if 1 kg potatoes cost 6 rupees 25 paise, find the cost of 9 kg of potato. 1 kg of potato का cost is given and they are asking you to find the cost of 9 kg of potato. So cost of 1 kg potato and then cost of 9 kg potato. ठीक है। So 1 kg potato का cost is 6 rupees 25 paise, 6 rupees 25 paise, and then we have to find the cost of 9 kg का, ठीक है। तो what we will do, rupees 6.25 multiply by 9, 6.25 multiply by 9, ठीक है। ओके किड्स, नाउ सी, 1 kg का दिया था, many का पूछा, 9 का पूछा, that's why we are multiplying here. So let us multiply, 9 5s are 45, ठीक है, 9 5s are 45, carry 4, 9 2s are 18, 18 plus 4, 19, 20, 21, 22. For 22 we will write 2 and we'll put carry 2 here. 9 6 the 54, 54 plus 2 56. Now 2 place pe we will put point, after solving we will put point at 2 place. So our answer is 56 rupees and 25 paise. Our answer is 56 rupees and 25 paise. So here it is given the cost of 1 kg of potatoes 6 rupees 25 paise. Now I want you all to ask your mother whether this is true, whether the cost of 1 kg of potato is 6 rupees 25 paise. सारे बच्चे अपनी अपनी मम्मा से पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो, और जितना मम्मा बताएंगी, मम्मा अगर मम्मा से पूछेंगे 1 kg ऑफ पोटैटो का कॉस्ट कितना है, और जितने का होगा देन यू विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ पोटैटो. सो आस्क योर मदर अबाउट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो, देन what you will do, then find the cost of 9 such kg. Okay, so kids, this is it for today. We will move with new things in our next class. Okay, till then, bye bye.